ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ इंस्टीट्यूट बंद करके ਇੱਥੇ पहुंचे हो। एक या दो दिन के लिए सोचा था कि 1 या 2 दिन लगाएं, लेकिन भाई यहाँ का दर्द जो है वो रोंगटे खड़े करने वाला है यार। आगे तक घर नीचे हो गए यार, रेत आ गया। ये जो पंजाब है ना भाजी, इसने पूरे देश को खिलाया है भाजी, और हमेशा खिलाया है, हमेशा। ठीक है, आज वक्त है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਧਰ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। चीज़ें ज़रूरतें ये सब छोटी चीज़ें हो जाएगी, सब करा देता है। जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो आपके पास ये होता है कि हाँ ये मेरे साथ खड़ा है, वो हौसला होता है, सबसे ज़रूरी होता है। जो हमारे 30 या 35 साल के भाई हैं वो तो ठीक है, चलो बाइक उठा के आ जाएंगे, लेकिन आप सोच के देखो एक बार यार कि जो 50 साल के 55 साल के यार वो कैसे करेंगे यार। अभी एक घर में गया है भाई, रूह कांप गई यार मेरी भाई, वो छत गिर गई यार। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म लॉस नहीं है, मैं मानता हूँ जितनी छोटी जानकारी में रखता हूँ लगभग सालों का लॉस है। भैया बता रहा था कि यार जो ज़मीन है उसमें रेत आ गया 5-6 फीट, तो खेती गई सालों भर के लिए। पानी जब उतरेगा, यहाँ से उतरना शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ में बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टाइफाइड, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एलर्जी है, वो सब बहुत कॉमन होंगी। काफ़ी सारे घरों में इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और ये अभी और बढ़ेंगी। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਰਸਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਬਾਹ ਫੜੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਈ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ किस तरह पहुंचे? सर पंजाब में इस तरह पहुंचे कि हमें न्यूज़ मिली थी कि पंजाब में इस तरह से बाढ़ आ रखी है, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग सब मिल के वहाँ के लिए मदद के लिए जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सबने प्लान बनाया और यहाँ पर हम आज फाइनली हम इस मौके पे पहुँचे हैं ताकि जो हमें दिख रहा है यहाँ पे जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से हम यहाँ आ पाए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा है कि सब लोग जो आ रहे हैं वो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भी राब्ता करें और आपसे भी पता करके आएँ। आप अपना नंबर शेयर कर देना हम लोगों को, हम अपने ग्रुप पे डाल देंगे उसको। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? दरअसल हमारा बेसिकली एक फाउंडेशन है, हुकूक फाउंडेशन, जो नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी में चलता है। हम सब उसी की टीम के मेंबर्स हैं, वही हम लोग चलाते हैं। हम लोग को इंस्टीट्यूट हमें इसलिए बंद करने में आसानी हो गई कि यहाँ का जो दर्द है वो हमने फील किया कि कल को अगर हमारे साथ ऐसा होने लगे तो जो हमारे सिख भाई है हमारे सामने खड़े होंगे, आगे आएंगे। इसीलिए हमें भी ताकत मिली, हिम्मत मिली। भाई ने कहा, ये ऑनर है इंस्टीट्यूट के, कि चलते हैं, अपने कामों को बंद करते हैं। और उससे ज़्यादा तो मैं कहना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूट नजीबाबाद के जो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे सवाल ही नहीं करा कि सर आप कहाँ जा रहे हो, हमारा फ्यूचर भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं नजीबाबाद को, हुकूक फाउंडेशन को और पिनिकल क्लास के सारे स्टूडेंट को। सो बिल्कुल
ਅਦਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? पाजी बचपन से साथी हैं और सारे वो कहते हैं ना चड्डी बड्डी हैं, तो वो हैं जी पाजी। एक बात ये है पाजी कि इंस्टीट्यूट बंद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है पाजी। हमारे से बड़ी हिम्मत हमारे बच्चों की है जी। सबसे पहले हमारे बच्चों ने हमें बताया कि पंजाब में बाढ़ आ गई है और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, और पाजी जो सबसे पहला पैसा इकट्ठा वहाँ हमारे फाउंडेशन से हुआ वो हमारे बच्चों की वजह से हुआ। जो पिनेकल क्लास के बच्चे हैं उन्होंने इकट्ठा करा, उन्होंने ला के हमें दिया कि सर आप वहाँ जाओ। उन्होंने हमें सजेस्ट करा। पाजी हम लेके आए थे 1 या 2 दिन के लिए, सोचा था कि 1 या 2 दिन लगाएंगे, लेकिन पाजी जब यहाँ का दर्द देखा, मतलब यहाँ पे यार इतना 16 पिंड है यार। यहाँ पे देखा, ठीक है हम तो एक पिंड से होकर वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ का दर्द जो है वो रोंगटे खड़े करने वाला है यार। मतलब आगे तक घर नीचे हो गए यार, रेत आ गया। वो रेत यहाँ से 2 से 3 महीने नहीं उतरना, खेती नहीं होनी। पाजी हम तो आए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ रहेंगे उनका दर्द अगर पाजी हम महसूस कर रहे हैं तो वो बहुत तकलीफ वाला है। मतलब हम यहाँ आए थे कि पाजी 1 या 2 दिन में यहाँ से तुर लेंगे, लेकिन पाजी यहाँ पर आके जो हमारा दर्द है वो और बड़ा है। और जो हमारी फाउंडेशन हुकूक फाउंडेशन, अब पाजी वो ग्राउंड लेवल पे बहुत कंधे से कंधा मिला कर काम करेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। और दूसरी बात पाजी मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो पंजाब है ना पाजी, इसने पूरे देश को खिलाया है पाजी, और हमेशा खिलाया है, हमेशा। ठीक है, आज वक्त है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का, आज वक्त है अपने भाई के हाथ में हाथ डालने का, आज वक्त है पाजी रोड पे इनके साथ खड़े होने का, क्योंकि पाजी घरों में तो पानी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, जो भी हमारे लोग आ रहे हैं इधर वो प्रॉपर गाइड के साथ आए, ठीक है जी, और यहाँ पे फील्ड पे उतर के काम करें। यहाँ पर हमारे भाई मिल के काम कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि आपको सारा काम आपको करना है जी, यहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं। मैं एक भाई का नाम लेना चाहूँगा, प्रिंस नाम है यहाँ पे, वो 5 से 6 घंटे हमारे साथ रहा। जितनी मेहनत हम सब ने मिला के करी है ना, उसने अकेले ने मेहनत की है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आपको यहाँ असिस्ट करेंगे लोग। सुल्तानपुर लोधी हम खड़े हैं, और ये जो है बाऊपुर इलाका है जी, आप यहाँ पर आइए, हालत देखिए, भाइयों ने दिखा दी होगी सारी हालत, देखो। और एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना अभी आप यहाँ पे सोच समझ के आइए कि यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत होगी। हाँ, है ना, दिमाग लगाइए कि यार मेरी बहनें भी हैं, ठीक है जी, घर में भाई भी हैं, किस चीज़ की जरूरत होगी, बड़े बुजुर्ग भी हैं, है ना, किसी को कान से आवाज़ नहीं आ रही तो कान की मशीन लेकर आइए यार, ठीक है। किसी को भाई देखिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपने लोग कैद है जी घरों में, बाहर भी आवे तो किस तरीके से आवे, ठीक है। जो हमारे 30 या 35 साल के भाई हैं वो तो ठीक है, चलो बाइक उठा के आ जाएंगे, लेकिन आप सोच के देखो एक बार यार कि जो 50 साल के 55 साल के यार वो कैसे करेंगे यार। अभी एक घर में गया है भाई, रूह कांप गई यार मेरी भाई, वो छत गिर गई यार, ठीक है। तो अब जो मेहनत होगी ना फाउंडेशन की वो अब स्टार्ट होगी भाई। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਧਰ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁछ के तरीके ਨਾਲ मदद कर रहे हैं? भाई हम यहाँ पे क्या है कि हमारी जो किट है बेसिकली उसमें एसेंशियल है, जो भी घरेलू सामान होते हैं, स्पेशली जैसे ये फ्लड का एरिया हो गया अभी यहाँ पे, तो हमारे डॉक्टर साहब इन्होंने हमें सजेस्ट करा कि डॉक्टर मुदस्सिर आलम, इन्होंने हमें सजेस्ट करा कि यार आप ये क्रीम्स लो, ये हमने सारा सामान खरीदा है, मेडिकल किट लेके आ रहे हैं। मेडिकल किट स्पेशली, और उसके अंदर कुछ कपड़े भी हैं भाजी, और बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी ऐसी हैं जो कि एसेंशियल है, ये हमने थोड़ा सा फोकस करा है भाजी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? जी मैं मेडिसिन फील्ड में काम करता हूँ। बेसिकली इस पूरे सिनेरियोस की अगर हम बात करें तो मदद करना, सामान पहुँचाना, खाना पहुँचाना, मेरा मानना है कि वो तो एक छोटी चीज़ है, वो तो इंतज़ाम हो ही जाएगा, ऊपर वाला सब इंतज़ाम कर देता है। यहाँ हम लोगों का आने का मकसद या जुड़ने का मकसद सिर्फ यही है कि हम पे फ़र्ज़ बनता है हर किसी पर, जब हिंदुस्तान हमारा घर है, पंजाब उसका एक हिस्सा, एक कमरा है, ठीक है। तो अगर हमारे घर में एक कमरे में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम अपने कमरे में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा घर हमारा हिंदुस्तान है। तो मुसीबत वक्त में जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये फील कराना होता है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। चीज़ें, ज़रूरतें, ये सब छोटी चीज़ें हो जाएगी, सब करा देता है। जब आप मुसीबत में होते हैं ना तो आपके पास ये होता है कि हाँ ये मेरे साथ खड़ा है, वो हौसला होता है, सबसे ज़रूरी होता है। और वही चीज़ का मैसेज देने के लिए हम आगे आए हैं कि ज़रूरी जो है पूरी वो ज़रूरत कर, ज़रूरी जो है पूरी वो ज़रूरत कर, मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत कर। बिल्कुल, बस यही सी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से सिर्फ सामान दे के आ रहे हैं, आगे के लिए हमने एक आइटिनरी बनाई है,
आने वाले टाइम में क्या क्या ज़रूरतें पैदा होगी। ऐसा नहीं, ज़रूरत अभी तो खाना ना सफिशिएंट हमने लोग यहाँ ठीक है, राशन वगैरह सब है, बट ये जब पानी सूखेगा यहाँ पे फ्लू भी आएगा, बीमारियाँ भी पैदा होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो लोग आने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि पहले यहाँ जहाँ लोग आए हुए हैं उनसे समझे आज के टाइम के बाद 15 दिन बाद क्या ज़रूरतें पैदा होगी, 1 महीने बाद क्या ज़रूरतें पैदा होगी। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म लॉस नहीं है, मैं मानता हूँ जितनी छोटी जानकारी में रखता हूँ लगभग सालों का लॉस है। भैया बता रहा था कि यार जो जमीन है उसमें रेत आ गया 5-6 फीट, तो खेती गई सालों भर के लिए, ठीक है। तो जो लोग, बहुत सारे लोग जोश में भी है, तो मैं चाहता हूँ कि अननेसेसरी चीज में अपना पैसा स्पेंड ना करें, पहले जानकारी ले कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, ठीक है। अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे खाना भी नहीं चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें में हो सकती है, कारोबार भी स्टेबल कराने हैं, घर भी स्टेबिलिटी पे लाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं बहुत जरूरी चीज पे जो मुद्दा नहीं उठाते, लोग अब मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ पे भी हम लोग को, मुझे नहीं पता, आई करेंगे, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। जब आप किसी डिजास्टर से गुजरते हो तो आप मेंटल ट्रॉमा आपके अंदर आ जाता है। तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो लोग आए और चाहे वो काउंसलिंग के जरिए, साइकोलॉजी के जरिए उन लोगों से कनेक्ट करें, ठीक है। हम किस तरीके से इस पूरे कंप्लीट ट्रॉमा से हम बहुत बाहर सकते हैं और फिर उसी पंजाब को देख पाए जो लहराता हमारा पंजाब है, जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि लोग ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, चीज़ों को समझे, ज़रूरतों को पहले, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले जानने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ लेके निकल जाते हैं, फिर इधर उधर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कंटेक्ट करें लोगों से, पहले जाने चीज़ों को, फिर आगे बढ़े। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ, जी ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ है। बिल्कुल सही। जैसा कि हमारे साथ भाई ने कहा कि जब भी कभी ऐसी डिजास्टर आती है या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बाढ़ हो, आंधी हो, इसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी बीमारियां साथ में आती हैं। तो उन्हीं बीमारियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे हमारे साथ वीडियोस आ रही थी या हमने देखा किस तरीके से यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने इमीडिएट एक मीटिंग की हम लोगों ने, और मीटिंग के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम कुछ नेसेसरी आइटम्स अदर देन फूड वो कलेक्ट करते हैं और उसके अलावा जो इसेंशियल मेडिसिन हैं वो लेते हैं। तो जैसे कि आप अभी देखेंगे पानी जब उतरेगा, यहाँ से उतरना शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ में बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टाइफाइड, कॉलरा, हैजा, इस तरह की बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एलर्जी है, वो सब बहुत कॉमन होंगी। अभी ज़रूरत ये है, हमने विजिट की यहाँ पर, हमने देखा काफ़ी सारे घरों में इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और ये अभी और बढ़ेंगी। तो इसके बाद हम लोगों का प्लान है और भी लोग अपनी टीम लेकर आए हैं मेडिकल की, और यहाँ पर बहुत काम रहेगा, तो मेडिकली बहुत हेल्प करने की ज़रूरत है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਨੀਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ? जी हमारे जो कोचिंग में है बच्चे, वो 11 से आते हैं, 11th भी है, 12th भी है, और आफ्टर 12th भी हम लोग बच्चों को कराते हैं। बोर्डिंग भी है हमारे पास बच्चों का, बच्चे हमारे पास रहते हैं, और पूरी सुविधा जो एक बड़ी बड़ी कोचिंग में होती है वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों में, हम अपने बच्चों को देते हैं जो हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, भले ही ये चैनल पंजाब का है बट ये यूपी तक जाए इस बात को, कि क्लिनिकल क्लास हर उस बच्ची की जो पढ़ने वाली है उसके सिर पर उसके पिता का साया नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है क्लिनिकल क्लास फ्री पढ़ाती है। चाहे वो कहीं की भी बच्चा हो, चाहे वो पंजाब का हो या यूपी का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, अगर उसके घर पर उसके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है स्पेशली और बड़े भाई नहीं है, तो हमारी जो कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जितने साल में सिलेक्शन नहीं होता उतने साल तक हम लोग फ्री कराते हैं बच्चों को। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ 6-7 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹੂਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਗੜਨੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ।